Assalamu alaikum, dear students. I'm Dr. Amreen, the course instructor for the course of Physical Agents and Electrotherapy 2. In today's lecture, I will be discussing or going to continue the previous part that we have started about the compression therapy in electrotherapy. In the last lecture, we have studied about the compression and we discussed that what are the basic types of the compression and how they are going to produce their effects. And the learning objective of today's session include that in this session, you will be, after this session, you will be clear that what is edema, what is the lymphatic edema, and what is venous insufficiency, and how then you have to plan your management according to the condition. For this, you need to have a proper understanding of the physiology of the different pressures of that is going to occur in the interstitial spaces or in the vessels. So let's start today's lecture that is from the edema. Actually, edema is the presence of abnormal amount of the fluid in the extracellular tissues or spaces of the body. Like in this picture, you can see this one is the vessel. This one I'm going to on the marker. This is these are the pink colored are the blood cells. Fine, this is the blood vessel. The blood, the fluid is going to leak out of this vessel towards the outside. For this, actually, edema में क्या होता है कि fluid बाहर चला जाता है vessel से. But we need to understand that why in a normal vessel there is not accumulation of the fluid. Normally भी fluid बाहर जाता है vessel से, but there is management. हमारी lymphatic vessels they are going to manage, so it is not going to accumulate. But in case of edema, there is a presence of some abnormal accumulation in the fluid in the extracellular spaces or in the tissues outside the blood vessel. Normally क्या होता है कि हम सब में आप में मुझ में there is an equilibrium in the fluid. Equilibrium में रहता है depending upon the hydrostatic pressure and osmotic pressure. Hydrostatic inside and outside the blood pressure दोनों में hydrostatic pressure होता है, osmotic pressure बाहर भी होता है, अंदर भी होता है, लेकिन इनमें एक equilibrium रहता है. We know everything move from higher to lower की तरफ move करती है, equilibrium में आने की कोशिश करते हैं, fluids move करते हैं. So if there would be low hydrostatic pressure outside, the fluid will tend to move from the vessel towards the outside because there is a pressure difference. ठीक होगा, तो इस तरह मूव करते हैं. और नॉर्मली हम में भी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय द ब्लड प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, व्हाइल द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड द वेसल. अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम इस तरह लेते हैं कि जो हमारा फ्लूइड कंटेंट है, हमारा सॉल्वेंट कंटेंट है, वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेगुलेट करता है, और जो उसमें प्रोटीन्स हैं वो फ्लूइड के तौर पे एक्ट करती है, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कर रही है. दिस इज अ पिक्चर मैंने ड्रॉ करी, इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करने जा रही हूँ. दिस इज ए राइट हार्ट. लेट्स सपोज कि हमारा राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, ये हमारे लंग्स हैं, ये दिस इज अ ब्लड वेसल. क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है हमारे लेफ्ट हार्ट से आता है एओर्टा के थ्रू, एंड इट इज गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड पोर्शन ऑफ द ब्लड, एंड ये हमारे इसके अंदर ब्लड वेसल में ट्रेवल कर रहा है. एंड ब्लड वेसल को जरा हमने बड़ा कर लिया. हमारे ब्लड वेसल में भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और नॉर्मली क्या होता है हमारा अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है. ये हमें नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बात करें, देयर इज अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लोअर बाहर कम होता है, जिसकी वजह से इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. Normally, if I say there are 10 molecules of blood here, let's suppose I'm just giving an example, and 4 are going to get 4 bahar chale jate hain, depending upon the pressure or difference. Hydrostatic pressure में जितना difference है, और मैं let's suppose मैं कह रही 4 एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर क्यूमुलेट हुए भी यही नहीं रह जाते, दे अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स द लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक पे फ्लूइड बड़ा ज्यादा है, सो ये फ्लूइड और उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो है, सो इसका इससे लो है, इससे ये फ्लूइड इसके अंदर चला जाता है. I'm again going to repeat. Normally हमारी ब्लड वेसल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्लाइटली हायर होता है एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, सो द फ्लूइड टेंड्स टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. लेकिन हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इससे भी क्या होता है,
सोल्यूट बड़ा ज्यादा होता है। सो ये जो 4 मॉलिक्यूल्स है नॉर्मली इसके अंदर चले जाते हैं, और ये वाले सारे अल्टीमेटली सारे लिम्फेटिक्स भी राइट में ड्रेन करते हैं, और ये 6 इधर बचे थे ये भी इधर आ रहे हैं, और ये 10 भी इधर जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो फ्लूइड लॉस हो रहा है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, नॉर्मली वो लिम्फेटिक्स के थ्रू दोबारा हमारे राइट हार्ट में आ जाता है, और टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड हमारा सेम हो जाता है। ये बात क्लियर? क्लियर? यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि देर इज सम इशू, देर में बी नंबर ऑफ इश्यूज, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई इशू है जिसकी वजह से बाहर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, या मैं कहूँ अंदर बहुत ज्यादा हाई है, फिर डिफरेंस आ रहा है 10, जो हमने 10 एग्जाम्पल, ये मैंने 10 एग्जाम्पल के तौर पर लिए 10 मॉलिक्यूल्स है ब्लड के या फ्लूइड के, ठीक है। इस 10 मॉलिक्यूल्स में इस दफा 6 चले जाए बाहर, नॉर्मली कितने जा रहे थे 4, और ब्लड जो हमारी लिम्फेटिक्स हैं, लेट्स सपोज कि वो हमेशा 4 को लेती है, उनके अंदर 4 को लेने की कैपेबिलिटी है, उनका डिफरेंस इतना है, और अभी मेरे थे 6, और हर बार 2, नेक्स्ट बार 2, फिर 2, 2 2 एक्यूमुलेट होते जाएंगे एक्स्ट्रा हैं। I'm again going to repeat. If I say my hydrostatic pressure of the blood vessel is going to raised as compared to the outside, so वो ज्यादा बाहर जाएगा, ज्यादा बाहर जाएगा, ओके फाइन। हमने आगे कहा आगे नेक्स्ट में हमारे पास वे है कि हमारा लिम्फेटिक में होता है वो भी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लेगा, उसका कितना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग लेगा। एफ आई से कि वो 4 ही ले रहा है, कह रहा है मेरी तो कैपेबिलिटी इतनी, मेरे पास इतना ही डिफरेंस है बाहर से और अंदर का, मैं 4 ही ले सकता हूँ, एवरी टाइम दिस 2 इज गोइंग टू एक्यूमुलेट एंड इज गोइंग टू कॉज लाइक एडीमा। ठीक हो गया? हम यहाँ पे यस मैम। यानी मैम जी 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 इस जी मैकेनिज्म के थ्रू एडिमा कॉज होता है फिर। हाँ, इस वाली स्टोरी में, मेरी पूरी स्टोरी में इस वक्त ये वाले एडीमिया के अंदर इशू ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है मेरी स्टोरी में, वो भी कहा मेरी वेसल के अंदर। अभी यही मैं कह रही ना, देर में भी नंबर ऑफ द रीजन, एक रीजन ये भी हो सकती है कि ये मेरी रेड कलर इसकी इतनी भी होती है ब्लड वेसल में नॉर्मल डायमीटर से ज्यादा परमिबिलिटी हो जाएगी, फिर नॉर्मली ये वेसल आउट ऑफ 10 4 भेज रही थी, अब ये आउट ऑफ 10 क्योंकि उसकी परमिबिलिटी ज्यादा है, रास्ते सारे ओपन है, वो भाग के उधर चले जाते हैं, 6 चले जा रहे हैं। इस दफा भी तो कुछ ज्यादा ही क्यूमुलेट हो गया, आगे तो 4 की वापसी होनी, 4 ब्रेन हार्ट के पास जाएंगे, 2 फिर बच गए, ये भी तो एक ये डिफरेंट बात होगी है ना। जी आयशा, मैम ये वाली बात रिपीट कर दूं। एक मैंने देयर में भी डिफरेंट सिनेरियोस, एक मैंने सिनेरियो बताया पहला वाला सिनेरियो जिसमें सिर्फ मैं ये कह रही थी कि मेरी ब्लड वेसल्स है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो इसलिए बाहर ज्यादा चले गए, ठीक है। दूसरी एक और बात जैसे ऐड करी कि अगर मेरी ब्लड वेसल है जिसका डायमीटर नॉर्मली इतना है, ये वेजो का नॉर्मल इतना है, लेकिन जैसे भी हम इन्फॉर्मेशन में कहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव मीडिएटर्स आए इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, परमेबिलिटी ज्यादा हो गई है, लेकिन गोल ज्यादा हो गया, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा पोर्स ओपन हो गए, सो आउट ऑफ 10 इंस्टेड ऑफ गोइंग 4 एज द गेट्स आर ओपन, सो ज्यादा बाहर चले जाते हैं वेजो डायलेशन में। यस मैम। तो तब भी नॉर्मल से हट के बात होगी, एक ये बात। एक और सिनेरियो भी हो सकता है, वो मैं एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर लूं। The next scenario is, अभी हम कह रहे थे कि हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो हमने एग्जांपल दी थी, यहां से आए 10 है, और यहाँ आउट ऑफ 10 4 बाहर चले गए ऐसे ही, और ये 4 थोड़ी देर बाद लिम्फेटिक्स में चले गए। ये नेक्स्ट थर्ड टाइप का सिनेरियो जिसमें मैं ये कह रही थी एक्चुअली हमारा एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेसल के अंदर होता है, और ये थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए यहां से यहां चले जाते हैं। इतनी बात क्लियर? यस मैम। हमारी यस मैम। लिम्फेटिक वेसल है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इससे भी लो होता है, और जब हम लिम्फेटिक्स की बात कर रहे हैं तब हम यूजुअली अभी अब नेक्स्ट पढ़ने वाले, तो हम हाइड्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करते, तब हम ये कहते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मीन सल्यूट ज्यादा है। हमें पता है जहां पे सल्यूट ज्यादा होगा सॉल्वेंट वहां भी आता है उसको जरा डाइल्यूट करने के लिए, थोड़ी सी बायोटाइप की बात होगी, होता है ना ऐसा, होता है ना।
Yes, ma'am. यहाँ पे ऑस्मोटिक, असल में हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, हमारे लिम्फ्स के अंदर प्रोटीन्स होती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर का, लिम्फेटिक वेसल का ऑस्मोटिक प्रेशर अक्सर ही ज्यादा होता है बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के बजाय। इसलिए ये जो 4 है ना, ये इधर चले जाते हैं। ये बात समझ लगी? यस मैम। Yes, ma'am. गौर से सुनना है। 10 से 4, ओके, ये नॉर्मल बात थी। 4 से 4 उधर चले गई, भी नॉर्मल बात थी, क्योंकि वहां लिम्फेटिक का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑपोजिट टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसलिए वो वहां चले गए। ओके, एवरीथिंग इज ओके। लेट्स सपोज इशू यहां आ गया कि अगर इन लिम्फेटिक वेसल का ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाए, मीन सल्यूट हो ना, मीन प्रोटीन्स का कंटेंट कम हो जाए, हाइपोप्रोटीनीमिया में हाइपो लेस प्रोटीन्स इन द मतलब सर्कुलेशन, मैम फिर फिर क्या होगा? इंटेस्टाइनल स्पेसिस में ज्यादा होगा ना, फ्लूइड ज्यादा हो फिर वो जाएगा। लिम्फेटिक्स के गेट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्यों कहेंगे कि हमें एक्चुअली वी आर ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड, हम ऑलरेडी नॉर्मल है, वी डोंट नीड यू। सब कुछ ठीक था, 10 में से 4 ही जा रहे थे, ओके, 4 आगे 4 में जाने थे नेक्स्ट लिम्फेटिक में, लेकिन लिम्फेटिक्स में कोई डिफेक्ट है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन्स, देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज लो, and now right now they don't need, because of their low osmotic pressure, they are not going to accept these 4 molecules. Now these 4 molecules Okay, ma'am. have to remain in the extracellular spaces. ऐसे ही ना? यस मैम। ये बात यस मैम। Yes, ma'am. So every time 10 से 4, 10 से 4, 4, 4 and every 4, and this is due to lymphatic issue, तो हम इसको कहते हैं lymphatic edema, due to issue जो है। So this edema has a region or issue in the lymphatic, so we'll say this is lymphatic edema. ये बात समझ लगी? Yes, ma'am. यस मैम लगी। इसी में मैं एक और बात एंटर कर रही हूँ, लिम्फेटिक एडिमा डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है। उसमें से ये पहली टाइप थी जिसके अंदर, उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड था उसकी प्रोटीन्स कम थी, उस प्रोटीन कम होने की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसलिए वो अपने अंदर नहीं ले रहा। ओके, ये एक बात होगी। अगर ये लिम्फेटिक्स, ऑब्वियसली लिम्फेटिक्स भी का पूरा नेटवर्क है, अगर ये लिम्फेटिक के अंदर यहाँ ब्लॉकेज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई ट्यूमर है या कोई ब्लॉकेज आ गया, इस फ्लूइड ने ऐसे मूव करना था ना, ऐसे करके हार्ट में ऐसे करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ब्लॉकेज। ये बात क्लियर? इतनी बात, ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो पीछे इससे जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, डिस्टल कह लें, इससे पहले वाला जो पार्ट है लाइक दिस वन, इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल आ चुके हैं और वो यही रुके हैं, वो आगे जा ही नहीं रहा, नेक्स्ट वाला आ ही नहीं रहा यहाँ। मीन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ चुका था। ये अब अच्छा, सारी बातें एक तरफ करके नया केस डिस्कस करें, मैं इसको क्लियर करके दोबारा ये केस डिस्कस करूँ, ये जो मैं नई बात आ रही थी। आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड द स्क्रीन, मैं नई बनाने लगी। सर जी, फ्लूइड यहाँ से यहाँ आता है। अच्छा, ये सेट ब्लड यहाँ से वेसल में आता है, यहाँ से ये बाहर चला जाता है, यहाँ से लिम्फेटिक में चला जाता है। ओके, इतनी बात करी, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सेम नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। लेकिन अब इस बार इशू है कि लिम्फेटिक वेसल में ट्यूमर हो गया या कोई ब्लॉकेज आ गया। ओके, अब ये फ्लूइड ना यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि वहां आगे रास्ता बंद है। और ये फ्लूइड ने अपने 4 मॉलिक्यूल्स जो उसने नॉर्मल, ये सब कुछ नॉर्मल, यहाँ से यहाँ तक का स्नैरियो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसने हमने ले लिए, उसके अंदर जितना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग उसने एब्जॉर्ब कर लिए लिम्फ फ्लूइड ने, ठीक है। अब लेकिन ये फ्लूइड मूव ही नहीं कर रहा, कौन सा वाला, ये वाला। जब ये मूव नहीं करेगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैक्सिमम होना था वो हो गया। हर बार जो 4 आ रहे हैं वो कैसे ले सकता है, क्योंकि उसने तो लिए हमें इतने वाले फ्लूइड ने, वो नहीं लेगा। लेगा? क्या ख्याल है आपका? हेलो? नहीं मैम, नहीं लेगा। क्योंकि वो मूव ही नहीं किया, वो ऑलरेडी रस्ट है, उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है, वो फॉल ही नहीं कर रहा, डिफरेंस आ ही नहीं रहा पोटेंशियल ऑफ प्रेशर का, तो वो आगे नहीं जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ लिम्फेटिक एडिमा, इसमें भी लिम्फेटिक रीजन का है ना, ठीक है। यस मैम। ये क्लियर? आज मैं डीमा की सारी टाइप, एक और टाइप है ये डीमा की, मैं इसको ऑफ करके दोबारा थर्ड टाइप ना, एक और एक्स्ट्रा टाइप, वो वीनस रीजन की होगी। नाउ इफ आई से
हम कहते हैं हमारा ब्लड नॉर्मली, मार्कर ऑन कर लीजिए, नॉर्मली हुई से हमारा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, एवरी ब्लड वेसल इज गोइंग टू लीड टू कैपिलरीज बन जाती हैं, कैपिलरीज बनती है, फिर वो वेन्यूज बन जाती है, ऐसी ना। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से जाता है और राइट हार्ट के अंदर चला जाता है। ओके, ये नॉर्मल बात कर रहे हूँ। और हमारी बॉडी की, अब ये पिक्चर की बात है, हमारी बॉडी में से जाता है पेरिफ्रीज में जाता है, पेरिफ्रीज से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी वापस आता है। और हमारी वेन्स के अंदर वो क्या, वेरिकोज, सॉरी, हमारे वेन्स के अंदर वाल्व्स हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes. Especially, और these valves are going to push the blood from the peripheries towards the up, और वो आप होता है नीचे वाला क्लोज हो जाता है, वो ऊपर जाता है, ऊपर वाला क्लोज हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर वाला क्लोज हो जाता है, ऐसे ही ना, ताकि फ्लूइड बैकवर्ड फ्लो ना करे, ऐसा फिजियोलॉजी में, है ना? Yes, ma'am. बॉडी ऐसे इमेजिन करें कि ब्लड नीचे जाता है, हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, हमारी पेरिफ्रीज में जा रहा है, और इसमें ग्रेविटी भी एक्ट करती है ना नीचे, और जब नीचे से ऊपर आता है, इसके अल्लाह ताला ने वेन्स में वैल्व्स रखे ताकि वो ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड बैकवर्ड ना जाए, इसलिए वो ऐसे पुश करता है, मसल ऐसे पुश करता है, ऊपर जाता है, वो वैल्व बंद हो जाता है, फिर वो पुश करता है, ऊपर जाता है, वैल्व बंद हो जाता है, ताकि वो बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का। इसको बैकवर्ड फ्लो कहते हैं, रेट्रोग्रेड फ्लो भी कहते हैं, पीछे ना आए। लेट्स सपोज, हाँ, ह्यूमन बॉडी में इमेजिन करना, हमारे जो वेल्स हैं, लेट्स सपोज के हमारे जो काफ के वेल्स हैं, वेन्स हैं, उनके वेल्स वीक हो जाए, लाइक ये वेल्व ना ऐसे टाइट रहता है, आगे ब्लड भेज के बंद हो जाता है, ये वेल्व वीक हो जाए, और ये इमेजिन करें ये वेल्व यहाँ पे ये वीक हो गया, ठीक है? सो वेल्व वीक होने से क्या होगा, ये ब्लड को पुश करेगा, ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर गए, हर बार 10 नहीं जाते, 10 नीचे से पुश हुए, 10 ऊपर चले गए, 10 ऊपर चले गए, 10, देखिए ये वर्ल्ड वीक है, जिसकी वजह 2 फिर बैक हो गए, मतलब आपने 10 ऊपर भेजे थे, वो 8 गुजर के 2 ना थोड़ा वेल वीक है, लेट्स सपोज 2 उतना 20% खराब है, 20% वापस आ गए, वो हर बार ये ब्लड पेरिफ्रीज में क्यूमुलेट रहेगा, और अपनी प्रेजेंस से ये अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ ज्यादा कर देगा, क्योंकि ये फ्लूइड अब एक नॉर्मल जितना जितना नॉर्मल हर बार 10 मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, हर कभी 2 फिर आ गए, 2 फिर आ गए, 12 12 14 14 16 16, पेरिफ्रीज के अंदर ब्लड फ्लो, वीनस ब्लड, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी पूरी हो गई है, यहाँ तो वेल्स काम नहीं कर रहे, या वेसल्स अच्छी पंपिंग नहीं कर रही, या मसल्स अच्छी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, तो ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, वो पूलिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड पेरिफ्रीज में क्यूमुलेट पूल करना शुरू हो गया, और ब्लड अगर पेरिफ्रीज में पूल करना शुरू हो जाएगा ना, तो ये इस वेसल के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा कर देगा, और अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाए, तो ये बाहर से कंपैरिजन में ज्यादा, इसलिए वो पार्टिकल्स मूव करके बाहर जा, फ्लूइड बाहर जाना शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा लो लो की तरफ ना, क्योंकि यहाँ बड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये ब्लड ऊपर प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा। ये हमारा वेन्स वाला एंड है, रेड कलर का, लेकिन ये समझे वेन्स है। ये बात समझ लगी? ये बात समझ लगी जी? मैम ये वाली बात रिपीट करना। मैं दोबारा, और किसको नहीं समझ लगी? मैम मुझे भी नहीं लगी समझ। ओके, मैं दोबारा रिपीट, स्टोरी हमसे लेते हैं पहले एग्जांपल। हम कह रहे हैं हमारा हार्ट पंप करता है, हमारी आर्टरी से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, वो हमारी पेरिफ्रीज में जाता है, ओके, हमारे फुट तक जाता है, हमारी वेन्स हैं वो वहां से बैकवर्ड सबको उठा के हमारे राइट हार्ट को वापस कर देते हैं। वेन्स के अंदर वेल्व्स हैं जो कि ब्लड फ्लो को बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं। पंप करता है, ब्लड ऊपर चला जाता है, मसल पंप करता है, ब्लड ऊपर चला जाता है, मसल की पंपिंग भी इसमें इन्वॉल्व है। देखें मसल की कॉन्ट्रैक्शन इसी नहीं होती ना, अलग वो हम कहते हैं जी मसल एग्जर्ट पंपिंग एक्शन ओवर द वेसल्स, तो मसल्स जो पेशेंट मूव करते हैं, काफ मूव करता है, इट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट, कि हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल है तो हमारी सर्कुलेशन अच्छी रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद सर्टेन इश्यूज, या हम बेड रिटर्न हो जाए, या वेल्स खराब हो गए हैं, तो क्या हुआ, एक वेन है, लेट्स सपोज दिस इज माय वाटर बॉटल, इसके अंदर यहाँ पे वेल्व है, और इस फ्लूइड ने लाइक ऊपर की तरफ मूव करना है, लेकिन अगर ये यहाँ से ये वेल्व खराब हो जाए जिसने इसको ऊपर पुश करना है, और थोड़ा सा वो प्रॉपर बंद ना हो, ये फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता नीचे लीक करता रहेगा हर बार, मीन एवरी टाइम द ब्लड विच हैज टू रिटर्न टू द बैक कार्डिक आउटपुट पूरा वापस जाना है, लेकिन एवरी टाइम जब भी
पुश करते हैं थोड़ा सा पीछे चला जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, हर बार ऐसे ही जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड इतनी है, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड, थोड़ा कम नीचे पेरिफेरीज में हमारी डिस्टल जो लेग्स हैं हमारी, उसके अंदर वो क्यूमुलेट होता रहेगा। एंड इस पिक्चर में मैं इसको यहाँ से ब्लू कलर का कर देती हूँ, एंड दिस इज सॉरी सो दिस इज दैट ब्लड जो कि ऊपर जा नहीं पा रहा, जिसने ऊपर जाना है, और हर बार वेन्युलर एंड पे एक्यूमुलेट वेन्स में एक्यूमुलेट हो रहा है, और अपनी प्रेजेंस की ब्लड वेसल में हर बार थोड़ा थोड़ा पूल करना, कार्डिक आउटपुट हो गया, और यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब ब्लड में वेसल में होगा तो नॉर्मल से हट के ब्लड प्रेशर हो गया ना, वो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, और सारा यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो यहाँ से वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से फ्लूइड ली करके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जाना शुरू हो गया। आगे हमने कहा लिम्फेटिक ने हमेशा 4 लेने, लेट्स सपोज ये 4 मैंने एग्जांपल दी है, उसने 4 लेने हर बार, यहाँ पे 4 की बजाय हर बार 6 आ रहे 6 आ रहे 6 आ रहे 6 आ रहे, और यहाँ से फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिम्फेटिक अपना नॉर्मल काम करी, लेकिन आपका इशू है कि जो पेरिफेरल वेन्स है ना वो हमारी काम नहीं करी, वो हमारे ब्लड को पुश करके ऊपर नहीं लेके जा रही। हाँ जी, यस मैम, आ गया समझ। So this is due to venous insufficiency, या बहुत सारी हमने कहा एडिमा की टाइप्स है, we have to look for the cause of the edema, then we have to manage। अच्छा now हम यहीं पे मैनेजमेंट ऐड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम टॉपिक का नाम है कंप्रेशन थेरेपी, इसमें हम कंप्रेशन बैंडेजेस, जैसे ये बॉटल है हम इसको कंप्रेशन बैंडेजेस यूज करते हैं, इसमें स्लीव्स हैं या वो गारमेंट्स हैं, वो सब चीजें क्या करती हैं। नेक्स्ट इज वो सब चीजें क्या करती हैं। चलिए वो सब चीजें क्या करती हैं, ये हमारा जो स्केर है ना ये हमारी टिश्यूज है, अगर मैं इस टिश्यू के अराउंड अगर ये दिस स्केर इज योर टिश्यू, जो स्केर बना नजर आ रहा है ना आपको स्केर, यस मैम। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द ह्यूमन बॉडी या पार्ट है जिसमें एडिमा है, हम क्या करते हैं इसके अराउंड ना बैंडेज कर दिया इसको, ठीक है, और ये बैंडेज है ना अपना प्रेशर इस पे एक्सर्ट कर रही है, मतलब आपने इसको टाई कर दिया है, बस इस ये मेरा हैंड है ये इसके, और हमने इसको ऐसे कर दिया कंप्रेशन दे दिया, और कंप्रेशन से एक्चुअली क्या होगा, ये जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस है ना इनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ज्यादा हो जाना हमें इस एडिमा में ये जो दो जिसमें ये बाहर लीक कर रहा था उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, आई एम सेइंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई कंप्रेशन over the part where there is swelling or edema। My question is, I'm also telling you that by using the compression, actually we are increasing the hydrostatic pressure over the extracellular spaces. Okay. Now my question is, how this increased hydrostatic pressure in the extracellular spaces is going to prevent edema? मैम जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जो होता है वो फ्लूइड जो होता है वो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमारे पास जितना फ्लूइड है वो हमारे पास वेसल्स में जा रहा है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में कम हो जाती है, जिसकी वजह से एडिमा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कोई और थोड़ा और अच्छा बताएगा, एनीबडी एल्स? जी सामा, मैम थैंक यू, ऐसा हो शाबाश, सकता है कि और अच्छा भी एलैबोरेट किया जा सकता है जी। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जब फ्लूइड ज्यादा हो गया, हमने कंप्रेशन अप्लाई किया हुआ है, तो ये होगा कि लिम्फेटिक वेसल्स के पास एक सिग्नल जाएगा कि हमने जल्दी जल्दी फ्लूइड मूव करना है अपना, ताकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर का फ्लूइड है वो लिम्फेटिक में ज्यादा से ज्यादा जाए और ज्यादा से ज्यादा ड्रेन होता जाए। इसमें एक इससे पहले का एक एडिशनल पॉइंट ऐड होना चाहिए, इससे पहले की भी एक बात बननी चाहिए, ये तो सेकंड बात होगी, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात मिस है जी। मैम कंप्रेशन अप्लाई करने से पहले मतलब जो कंप्रेशन अप्लाई करते हैं तो मसल भी तो अपना पंपिंग इफेक्ट शो करता है ना वेन्स के ऊपर, तो जब वो वेजल्स के ऊपर अपना पंपिंग इफेक्ट शो करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में से भी जो फ्लूइड ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ होगा वो लिम्फेटिक में जाएगा, मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाला मैकेनिज्म होगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस वाला, देन वो लिम्फेटिक में जाके और फिर ड्रेन करवाएगा उसको फ्लूइड को और एडिमा कम हो जाएगा। जी
सबसे पहले मसला क्या था शुरू में इस पेशेंट को जिसको हमने कंप्रेशन लगाया था कि उसका, मैं मार्कर उस इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था कि अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा था, ठीक है, और बाहर लो था, इसलिए फ्लूइड यहां से यहां आ रहा था। ऐसे ही है, ये मेरी बात दोबारा सुनिएगा। बाहर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो था और ब्लड वेसल में ज्यादा था, फ्लूइड बाहर आ रहा है। हम अब क्या करें, हम बाहर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा करें, इससे क्या फायदा होगा? हम बाहर का अंदर से ज्यादा करें तो मैम जो वेसल्स का है वो बाहर नहीं जाएगा फिर? एक तो फायदा ये होगा कि वेसल से बाहर नहीं जाएगा, एक एडिशनल बात। दूसरा, ये कोशिश करेगा अच्छा बाहर का ज्यादा चाहिए अंदर भेजने की भी कोशिश कर सकता है। इसके अलावा मतलब रिवर्ट बैक भी उसमें कर सकता है। इसके अलावा ये इसमें भी प्रमोट करेगा, है ना। यस Now, मैम। this increased hydrostatic pressure in the extracellular spaces that we have induced by applying the compression is going to prevent, firstly, further fluid out of the vessel. It propels this fluid that is accumulated in extracellular spaces to move towards the vessels. Because वो ज्यादा है वेसल से, ठीक है। यस मैम। एक और बात, एक मैंने बहुत लिम्फेटिक एडिमा की फर्स्ट टाइप बताई थी, कौन सी, जिसके अंदर हमारी और प्रोटीन्स कम है, कहा था मैंने आज बताई थी ना शुरू, एक लिम्फेटिक्स की, जिसमें मैंने यस मैम। कहा कि हमारी ना प्रोटीन्स का लेवल यहाँ पे कम है। येलो कलर, ये हमारी जी कहाँ गया जी, दिस इज, ये हमारी येलो कलर की प्रोटीन है, ये यहाँ पे कम हो गई है, इसलिए ना जो 4 मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे थे यहाँ नहीं जा रहे। माई क्वेश्चन इज, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, गौर से सुनेगा, that by applying the compression, can you help this type of edema in which there is actually decreased level of osmotic pressure in the lymphatics? नो मैम। सवाल मुश्किल था, I'm again going to repeat। सही हो गया वैसे आपकी बात जी, जिनको जिनको नहीं समझ लगी उनके लिए I am going to say the type of edema जिसके अंदर इशू ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। लिम्फेटिक्स में ऑस्मोटिक प्रेशर की ज्यादा बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है प्रोटीन्स के ऊपर, एक्चुअली इनका प्रोटीन कंटेंट कम है, प्रोटीन कंटेंट के कम होने से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है लिम्फेटिक्स का। वो जो नॉर्मली जिनकी हमने आइडियली हमने 4 स्टैंडर्डाइज किया कि 4 मॉलिक्यूल्स लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट कम है, 4 जा नहीं पा रहे, इसलिए वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में स्टे करी जा रहे हैं फ्लूइड। My question is that by applying the compression, can we help this fluid to move towards the lymphatics? Afifa, I think said no, है ना? समरा Afifa से ने नो, कहा समरा ने कहा था मैम नो, लेकिन जी, मेरा भी आंसर यही है कि मैम देखिए यहाँ पे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है ना, तो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी को डाइटरी इनटेक के जरिए ठीक करना चाहिए रादर देन अप्लाइंग का कंप्रेशन। Okay, जी समरा, would you want to add something here? यस मैम, हम लोग उसकी डाइट को ही अच्छा करेंगे ताकि उसका प्रोटीन का कंटेंट अच्छा हो। जब प्रोटीन ज़्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा उसका। हम इस पेशेंट में इंस्टेड ऑफ कि शुरू में कंप्रेशन लगाते फ्लूइड किधर जाए, क्योंकि जिधर जाना है वो गेट्स बांधा है, उन गेट्स के लॉक लगे हुए हैं और वो लॉक हम उसकी फ्लूइड प्रोटीन कंटेंट को बेहतर करके कर सकते हैं, ठीक है ना। यस मैम। So what we need to do is we have to actually work on the diet। हम उसका एल्ब्यूमिन लेवल बेहतर करेंगे प्रोटीन में, और साथ में हम फिर कंप्रेशन लगाएं ताकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा हुआ है वो एल्ब्यूमिन लेवल बेहतर है, तो आप भी थोड़ा असिस्ट कर दें, देन यू कैन वर्क, है ना। यस मैम। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ जी मैम जो फिर लिम्फेटिक की जो सेकंड टाइप थी जिसके अंदर ब्लॉकिंग हुई थी, फिर उसमें तो कंप्रेशन थेरेपी फिर उसमें भी वर्क नहीं कर रहा होगा? उसमें भी बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, उसमें आपको सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा कि जहां पर ट्यूमर है, ब्लॉकेज, आप जब तक उसको वो नहीं करेंगे तो आप हेल्प नहीं कर सकते। ओके मैम। एग्जैक्टली, ठीक है। और जैसे वीनस इनसफिशिएंसी वाला, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हेल्प करें कि फ्लूइड को ऊपर मूव करने के, इनके मैनेजमेंट करेंगे, उसको ऊपर जाए और ऊपर जाके मैनेज करें, ठीक है। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन था, दैट वाज रिलेटेड टू, बुला दिया आपने, चलिए एंड कर दें, आई थिंक सेशन।
So kindly I request to all कि ये आज का लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया और जिन्होंने समझने की कोशिश की उनको समझ आया होगा। स्टिल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, जो स्लाइड्स है और जो रिकॉर्डेड सेशन उसको गो थ्रू करें। उसमें भी मैंने एक दफा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इंटरैक्टिव सेशन भी पोस्ट कर दूंगी, जिनको क्वेरीज हैं वो दोबारा एक दफा सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके मैम। हमारे जितने भी नेक्स्ट सेशंस है ना वो इस बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ एडीमा और हमने इसी को मॉडिफाई करे जाना। हमने वी आर अगेन गोइंग टू यूज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लिम्फेटिक्स में कम है, इधर ज्यादा है, वेसोडाइलेशन है, वेसल कैसे हो गया, वीनस फ्लो नहीं हो रहा। सो ये तमाम ये टुडे वाज द बेसिक लेक्चर। मुझे मेरा क्वेश्चन याद आ गया, दैट वाज दैट कैन यू हेल्प बाय यूजिंग compression and हमने पढ़ा था एक टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, थोड़ा सा पढ़ा था फार्मा में, याद है? यस मैम। उसमें पेशेंट को बायलेटरल पैरिफेरल एडीमा होता था, याद है? जी मैम। चलिए मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ। कैन वी हेल्प द पेशेंट हु हैज बायलेटरल लिम्फेडेमा स्पेशली इन केस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर? Either compression therapy can be helpful for those patients. This is the assignment I will post in the Google Classroom. ठीक है? ओके मैम। बायलेटरल लिम्फेडेमा है उसको मैम। Bilateral lymphedema due to congestive heart failure. ओके मैम। Do our compression therapy help it out? This is the assignment for the next week or for this week. At the end of this week, I'm going to post it in Google Classroom. So kindly do post your answers there. ओके मैम। Okay. Thank you, Ji. Okay, If you ma'am. have इसको प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस में भी कंप्रेशन के पेशेंट्स को बहुत नीमा के पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, बिकॉज वी नीड टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज। ठीक हो गया? ओके मैम। एक सेकेंड जी, आई एम गोइंग टू क्या हो गया, I am going to end this session and hopefully have a good weekend। और kindly next जो वीडियो मैंने पोस्ट की उसको जरूर देखिएगा। ओके मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू यू मैम। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।